Guys, this is Aditya. I am currently pursuing my Masters in College of Engineering, Pune. The one thing that I quite like about this institute is that how well it has maintained a balance between the academic and non-academic activities, and it is not the case in most of the Indian institutes, and it will certainly help you in your overall development. So, all the COEP. This name is enough to tell you about this college. That feeling of studying in a premier institute of India. Hello, I'm Rizima Lisa and I want to say that being COEPN is something which makes you proud about yourself. Engineering Pune, the only college in which there is a subway. COEP is only college where you will get COEP. It is not College of Engineering Pune. It is College of Events Pune. Hello everyone, this is Pradeep Naik and I am doing my master's degree in automotive technology from College of Engineering Pune. It is one of the topmost and the oldest university in the Maharashtra, other than IITs and NITs. It provides all the facilities that you need. It was one of my dream college to do my master's degree, and now I'm doing my MTech in that college and not regretting it. So if you have that chance to get admission in this college, then congratulations, your future is bright. Thank you. Hello guys, if we talk about College of Engineering Pune, there are two cases. If you are continuing your education, then it will be like चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है. yeah. And with the facilities the college has, it will be like दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके. And also if you are a sponsored student or if you have an industrial experience, then the feeling after joining the college, it will be like बंद गया पट्टा देखो बन गया कुत्ता बांध सका पट्टा देखो बन गया कुत्ता. or you may say after completing the education, oh shit, yeah, or it can be like कोई हमसे ना हो जाए. Hello guys, this is Kiran Gunjal and I am doing my masters in College of Engineering Pune, COEP. I am also research intern at Automotive Research Association of India, ARI Pune. Today I am going to start a program for you, that is a COEP MTech admission counseling through my YouTube channel GK Rocket COEP. You can also check out the new playlist in my YouTube channel for your MTech admission. This counseling include all the updates of the DTA Maharashtra, that is Director of Technical Education Maharashtra. If there is any changes in MTech admission procedure due to this COVID-19 pandemic, or there will be some review of branches like which includes the fee structure, stipend procedure, gate cutoffs, placement scenarios, and scholarship and all the facilities of the college. And I'm also going to cover all specialization of the mechanical branches as well as few important specialization from the other departments like electrical, electronics, civil, instrumentation and computer science as well. Taking a fast forward in this video, I would like to share my MTech experience and how an average student like me made a stable career being a COEPN. I completed my engineering in 2017 and after engineering I prepared 2 years for the GATE, and in these 2 years I given every exam like GATE, IS, PSU, ISRO, DRDO, other PSC exams, RRB exams and SSC, JEE and all others. I also given few interviews like in DRDO as well as ECIL, but nothing has been happened and कुछ भी नहीं हो रहा था. ऐसा हो रहा था कि मेहनत तो बहुत चालू थी, पढ़ाई भी बहुत चालू थी, लेकिन सक्सेस नहीं आ रहा था. हर एक बार ऐसा लग रहा था कि इस बार हो जाएगा, एग्जाम अच्छी गई, इंटरव्यू अच्छा गया, लेकिन एक टाइम आता है लाइफ में कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट आता नहीं. तो गेट तो क्वालिफाई हो गई थी लेकिन मेरा स्कोर एवरेज आया था 487, विच वॉज नॉट इनफ. एंड ऐसा सुना था कि गेट क्वालिफाई कर दिया तो प्राइवेट कंपनीज में अच्छी जॉब मिल जाती है, लेकिन कंपनीज ढूंढी, टाटा, महिंद्रा, LG, स्कोडा,
सिंडस, स्लम्बर जैसे बहुत सारे कंपनी को अप्लाई किया। परेशानी में मैंने कम से कम 300 कंपनी को अप्लाई कर दिया, लेकिन एक भी कंपनी से रिप्लाई नहीं आया, एक भी कंपनी से रिस्पॉन्स नहीं आया, कॉल बैक ना कुछ आया। तो परेशान होकर कंसल्टेंसी ढूंढ ली, उनको पैसा फेंकना पड़ता था। तो फिर रिलेटिव्स को रेफरेंस पूछा, कुछ ने हाँ बोला, कुछ ने बताऊंगा बोला, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और ना मतलब ना तो जॉब ही नहीं मिल रही थी, और ऊपर से मेरा एजुकेशन लोन था 5.5 लाख के ऊपर का हो गया था वो भी टेंशन चालू था। तो परेशानियाँ इतनी बढ़ती चल रही थी और इधर मेरी साइकोलॉजी बिगड़ती चल रही थी। फाइनली मुझे एक जॉब मिल गई थी, कंपनी अच्छी थी लेकिन मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं थी, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, ना प्रिपरेशन हो रहा था और ना कुछ हो पाता उस कंपनी से। सो मैंने भी डिसाइड कर लिया। मुसीबत में मेरे 2 फ्रेंड्स थे जिन्होंने COEP में एडमिशन कर लिया था ऑलरेडी, तो नितिन और मोरिश्वर। आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू देम बिकॉज उन्होंने मेरी अच्छी काउंसलिंग कर दी एमटेक के एडमिशन के बारे में, और उन्होंने जो बातें मुझे समझाई वही बातें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि ऐसी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि COEP में कौन सी भी एक ब्रांच ले ले और कम से कम IT में प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा, IT में जॉब तो लगी जाएगी। तो मैंने वही सुना, मैंने भी डिसाइड कर लिया कि एमटेक कर लेता हूँ। और मैं भी आपको वही बताने जा रहा हूँ, अगर आप भी ऐसी सिचुएशन से जा रहे हैं, मेहनत चालू है, सब चालू है, लेकिन सक्सेस नहीं आ रहा है, बीच में से ऐसे नेचुरल क्राइसिस आ जाते हैं, क्लाइमेटीज आ जाते हैं, तो कुछ हो नहीं पाता है, तो आप डायरेक्टली COEP में आ जाओ, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बहुत सारे रिसोर्सेस है, बहुत सारे सरप्राइज है COEP में, करियर स्टेबल हो सकता है। तो समझदारी से काम लेते हुए मैंने एमटेक करने का डिसीजन ले लिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लाइफ में जिद लेके बैठते हैं कि मुझे यही करना है, वही करना है, लेकिन क्या होता है ना कि फैमिली कंडीशन, इकोनॉमी, प्रिपरेशन, मेंटालिटी, रिलेशंस, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, उनका हमारे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कभी कभी अल्टरनेटिव ऑप्शन भी सोच सकते हैं हम। तो मैंने भी मेरी प्रिपरेशन की जिद छोड़ दी और एमटेक में एडमिशन करने का डिसीजन ले लिया। और फर्स्ट राउंड में मुझे मेटलर्जी ब्रांच मिल गई, जो कि 2018 में नहीं मिली थी, 2019 में मिल गई। COEP में कुछ ना कुछ मिल गया था, लेकिन मैंने एडमिशन कंफर्म नहीं किया, फ्लोट कर दिया और सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का वेट किया। लेकिन सेकंड और थर्ड राउंड में मुझे कुछ नहीं मिला, शफल नहीं हुई कोई सी भी ब्रांच। और थर्ड राउंड के बाद आई हैड टू सेटिस्फाई ऑन मेटलर्जी ओनली, सो मैंने कंफर्म कर दिया मेटलर्जी में। सो आफ्टर 3 राउंड एक ट्विस्ट आया मेरे लाइफ में, जो कि स्पॉट राउंड नाम का एक राउंड होता है। और जो स्पॉट राउंड होता है वो सिर्फ लक वालों को होता है। और 3 राउंड के बाद जो स्पॉट राउंड आया उसमें अब तक मेरा जो लक कहाँ चढ़ने गया था पता नहीं, वो वापस आ गया। और माई लक जम्प टू फ्रॉम मेटलर्जी टू ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी डायरेक्टली, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई वेंट इन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ब्रांच, बिकॉज ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में ओनली पैशनेट पीपल एंड टॉपर्स, गेट के टॉपर्स लोग ही आते हैं, ऐसा सुना था और वैसा ही हुआ। मेरे क्लासमेट सब बहुत इंटेलिजेंट है। ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच among all the branches of the COEP, which has also tie up with the Automotive Research Association of India, ARI Pune, and only passionate and GATE toppers are seeking for the admission in automotive technology, and मुझे वो मिल गई थी। ऐसा लग रहा था पहली बार कि लाइफ में कुछ अपने साइड से हो रहा है, तो मैं ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी मिल गई थी। COEP में अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छे टीचर्स मिल गए, बहुत सब टेक्निकली बातें सीखने को मिल गई। और मेरा लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम था, हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, दोस्तों के साथ वो भी सीख गए, अब थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आ रही है और हिंदी भी आ रही है। और COEP में एक सरप्राइज़ होता है, जैसा हमारा एडमिशन हो जाता है ना कि एक दूसरे से मुलाकात होते होते एक महीने के अंदर ही कंपनीज आने लगती है इंटर्नशिप के लिए, और कुछ लोग का सिलेक्शन भी हो जाता है। तो हमारे टाइम में भी ऐसा हुआ, जब तक मुलाकात हो जाती तब तक इंटर्नशिप के लिए कंपनी आ गई, और हमारी क्लास के स्वप्निल कडलक का सिलेक्शन भी हो गया उसमें। तो कंपनीज आती रही, रजिस्ट्रेशन करते रहे हम, और 1-2 चांसेस भी मिल गए थे। और उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में जब ARI का इंटर्नशिप के लिए मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ, तो इंटरव्यू के टाइम मुझे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प की, टेक्निकल बातें समझाई, इंटरव्यू का समझाया सब।
तो जैसा उन्होंने मुझे समझाया वैसा ही मैंने उधर इंटरव्यू में बता दिया और फाइनली जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था. So I would like to encourage you all guys, please try hard for the admission in COEP. I have created one Telegram channel and you have to join the channel. Link is given in the description. I am also going to give you my WhatsApp number, email IDs. Go to comment and raise your doubts. Every doubt is will be replied. And if anything, please feel free to ask me on WhatsApp, on email ID, in comment, no problem. So thank you, good luck, and have a bright future.